Student, this is Hari from English classes. Welcome to you all in my new session, and today my topic is the ball poem of your lesson number 5th, and it is a 5th poem from your English literature book CBSE standard 10th. So today I will discuss about the poet, and we will discuss about introduction to the poem, and finally we will go for discussing about the explanations of the poem. So I hope that you will watch this video till last without skipping it, so that you will get whole explanations. And by end of the video I will just try to give you a lot of the things, so please you must watch till last. Thank you. So now we will discuss about the poet. So let us see please. John Berryman was an American poet and a scholar. Here I want to tell you guys about the poet, that he was an American poet as well as he was a scholar, and he was born in 1914 and he died in 1972. जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो जॉन बेरीमैन का जन्म हुआ था, उनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1972 में हुआ था स्टूडेंट्स. ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, मतलब उन्हें अभी भी बेस्ट नॉन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स के नाम से जाना जाता है. दैट वाज इन 1969, which was a sequence of 385 poems, and that was a sequence of 385 poems. बस इसी के लिए उनका एक ड्रीम सॉन्ग था, एक कलेक्शन का ड्रीम सॉन्ग था, जिनके कारण से उन्हें आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है. ही ऑन पुलिट्जर प्राइज फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स. ड्रीम सॉन्ग्स के जरिए से उन्होंने काफ़ी एक बहुत ही बड़ा अवार्ड को भी जीत लिया था, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड को भी गेन किया था. दैट वाज अ ग्रैंड सक्सेस फॉर द जॉन बेरीमैन. ही ऑल्सो ऑन नेशनल बुक अवार्ड. Not only he got only that award, but also he won National Book Award. Okay, and that was a really very good opportunity for the John Berryman in his time, in his life. So students, here we just got it about the poet. Now we will discuss about the introduction to the lesson. Okay, now see. The poet John Berryman, through his poem, the ball poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life. Here students, we will try to know that the poet John Berryman, जो कवि जॉन बेरीमैन है, वो इस कविता के जरिए से थ्रू हिज पोम, वो अपने कविता के जरिए से बताना चाहते हैं द बॉल पोम. ओके, द बॉल पोम हैज़ डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये जो कविता है वह जीवन के संपूर्ण भाग को, उनके रियलिटी को बताने का प्रयास किया है. विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन उस चीज़ को फेस करना होगा. And definitely that day will just come to each and everybody's life one day. So we must be ready, we must be grown up, we must be mature to cope with that of the situations when it will just come to us. For that we must be ready. And here also the poet has emphasis that he has touched the topic of how to stand up. उन्होंने यह भी कोशिश करा बताने के लिए कि हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिस्ट्रीज. अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा मतलब रिस्की हो, दैट वाज अ टू रिस्की फॉर अस एंड वी हैव टू बी कॉल्ड फॉर द कॉप विथ, देन हाउ विल वी स्टैंड अप. कैसे उसके प्रति हम स्टैंड अप करेंगे, उस मिस्ट्रीज को, उस सोरो ऑफ लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू थिंक इन दिस पॉइंट. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द पोम. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स. So here we are just going to see please that what is the boy now who has lost his ball, what is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. So now here we will try to discuss about the explanation of the poem please. Here we can see what is the boy now. यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, कवि इम्फेसिस कर रहे हैं कि what is the boy now, कि अब लड़का क्या करेगा, अब लड़का क्या कर सकता है. What can he do, what will he do, because who has lost his ball,
अब उसका बॉल बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उसका बॉल बिल्कुल खो चुका है। अब वह लड़का क्या करेगा जिसका बॉल खो चुका है? वह लड़का क्या करेगा जिसका बॉल खो चुका है? वट इज इट टू डू? अब यहाँ पे देखिए जो कवि है जॉन बेरीमैन, यहाँ पे एम्फेसिस किए वट इज इट टू डू। अब वह क्या करेगा? नथिंग ही कैन डू, ही इज अ वेरी होपलेस, ही इज अ वेरी डिस्ट्रेस। आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। द बॉय सेड दैट आई सॉ इट गो वेयर आई वॉज स्टैंडिंग एंड द बॉल मिस्ड फ्रॉम माई हैंड एंड इट वेंट into the water and I saw when the ball was passing from my side. So merrily bouncing down the street and then merrily over. Merrily bouncing, the ball was very happy. That was very happy. That was very merrily bouncing. और वह जंपिंग करते हुए, हंसते खिलते, आगे बढ़ते हुए आगे गया। डाउन दी स्ट्रीट, उस गलियों के नीचे की ओर गया। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फाइनली वह जो बॉल था वह पानी में जाके मिल गया। एंड आई वॉज लुकिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, ईच एंड एवरी कंडीशंस what was just happening in the street when my ball fell down on the ground and it started to go into the water by merrily bouncing down the street and then merrily over. So now अब जो वह बच्चा है वह कैसे उस पर रिएक्ट करना है, कैसे उसका रिएक्ट करने के लिए चाह रहा है, कैसे वो रिएक्ट करता है। सो नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो मैंने बताया है। मैरिली का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्नता, मतलब हैप्पीली, बहुत ही खुशी से। बाउंसिंग, बाउंसिंग का मतलब होता है जंपिंग करना, मतलब उछल कूद करना। अल्टीमेट, दैट इज अ फाइनल, मतलब लास्ट, फाइनल, अंतिम। सेकिंग ग्रिप का मतलब होता है बच्चों ट्रबल ग्रिप, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द मनाना, बहुत ही ज़्यादा दुखी होना। ओके, सो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि देयर इज नो कंसोल, देयर इज नो यूज टू कंसोल हिम विद द वर्ड्स डोंट वरी देयर आर मैनी अदर बॉल्स। बहुत सारे बॉल्स हैं, एक बॉल नहीं तो दूसरा बॉल मिल जाएगा। देयर आर मैनी अदर बॉल्स। द ग्रीफ एट द लॉस हैज मेड द बॉय स्टीप। ओके, नो यूज टू सी। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है कहने के ओ देयर आर अदर बॉल्स, बहुत सारी अन्य बॉल्स हैं जो बहुत ही कम पैसे में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब वो जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा मतलब सेकिंग कर रहा है अपने बॉडी को, काफ़ी दुख में है, काफ़ी ट्रबल में है। वो अपने बॉडी को मतलब एक ही क्षण में, एक ही कंडीशन में मतलब फिक्स कर रखा हो, मतलब जाम करके रखा हो। अब वो उस दुख से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, मानो कि ऐसा मतलब उसके साथ हो रहा है। सो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, देयर आर लॉट ऑफ द बॉल्स वी हैव। ओके, बट नो यूज टू से, बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। सो नाउ वी विल जस्ट गो फॉर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर। As he stands rigid, traveling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility in a word of possessions. So students, first of all we will see the difficulties words of this stanza. So rigid, rigid का मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होना, कठोर हो जाना, सख्त बन जाना। ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग का मतलब होता है सैकिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा कपकपाना। ओके, नाउ स्टारिंग, तो स्टारिंग का मतलब क्या होता है? लुकिंग नीली, लुकिंग नीली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टकटकी लगा के देखना, एकाग्रता से देखना। हार्बर, तो हार्बर का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉट होता है जहाँ से पानी निकलने का क्रमशः स्टार्ट हुआ हो, जहाँ से पानी आपका निकल रहा हो। इंट्रूड का मतलब होता है एंटर फोर्सिबली, मतलब तेज गति से फोर्सिबली करना या फिर उसे इंटरप्ट करना, मतलब
मनाही करना या उसे डिस्टर्ब करना, दैट इज द इंट्रूड. सो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज हियर वी जस्ट हैव as he stands rigid traveling staring down. सो यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी में है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड में है, उसका बॉडी खुद के ट्रैवलिंग कर रहा हो और काफ़ी ज़्यादा वो अपने नज़रों को टकटकी लगा करके नीचे की ओर देख रहा हो. ही स्टैंड्स रिजिड, ही वाज जस्ट नॉट एबल टू थिंक एनी अदर थिंग्स. He was just not able to come out from that of the situations. Okay, and that is fixed in the same situations what had just happened to him. So he stands rigid. वह एकदम बिल्कुल कठोर के जैसा, स्टीफली के जैसा एक ही जगह पे वो खड़े हुए ट्रैवलिंग, और उनका जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा कपकपा रहा हो, काँप रहा हो. स्टैरिंग डाउन, और वह नीचे की तरफ टकटकी लगा के देख रहा हो जहाँ उसका बॉल चला गया. He was looking on that of the destinations where his ball went into the water. So all his young days into the harbor where his ball went. और यहाँ पे कवि बताना चाहते कि मानो कि उसका पूरा यूथफुल डेज, उसका बचपना का समय, उसका चाइल्डहुड का समय पूरा इमोशनली अटैच था उस बॉल के साथ जिस हार्बर में उसका गेंद चला गया, जिस हार्बर में उसका गेंद चला गया. तो कवि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि what he had the childhood, what he had youthful days, so all these things were just attached with this ball. Okay, that was emotionally. Okay, so this is the thing that poet wants to make us understand कि उनका जो यूथफुल का डेज था, चाइल्डहुड डेज था, बचपना का समय था, वो सब कुछ अटैच था इमोशनली उस बॉल के पास जो वो हार्बर में चला जा चुका है, उस स्पॉट में चला जा चुका है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और यहाँ पे कवि खुद को कहते हैं कि मैं अभी उसके दुख में बिल्कुल इंट्रूड नहीं करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी, मैं उसे देखना चाहता हूँ कैसे वो स्टैंड अप करेगा, कैसे अपने आप को खुद को ग्रोन अप करेगा. ओके, सो आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट हिम. So Ardime, another ball is worthless now. He senses first responsibility in a word of possessions. Ardime, तो Ardime is equal to 10 cents. Okay, and 10 cents ये कहाँ पे बोला जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. जिस प्रकार से हमारे इंडिया में करेंसी को पैसे बोले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेंट्स बोले जाते हैं. तो Ardime is equal to 10 cents. तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि Ardime अनदर बॉल, 10 सेंट से आप अनदर बॉल को खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे फिर वो रिएक्ट करना चाह रहा है कि 10 सेंट्स, 20 सेंट्स, 5 डाइम्स, 6 डाइम, एवरीथिंग इज वर्थलेस. सभी चीज़ यहाँ पे वर्थलेस है उसके सामने, उसके बॉल के सामने, क्योंकि मनी इज नॉट अ मैटर. यहाँ पे पैसे की बात बिल्कुल नहीं है कि मैं उतने पैसे से उस बॉल को खरीद सकता हूँ. उसका यूथफुल का डेज है, उसका बचपना का समय, वो पूरे इमोशनली उस बॉल के साथ अटैच था जो पानी में चला गया. वी कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग with the money, but how can we purchase, how can we buy the emotional that has been attached since his childhood. So the Ardime another ball is worthless now. सब कुछ बेकार है, सब कुछ worthless है. Okay, he senses first responsibility in a word of possessions. यहाँ पे जो कवि है वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब नाउ द बॉय रियलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड. अब जो लड़का है वो काफी लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग अ टाइम, अ बॉय रियलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज अ रेस फॉर मोर एंड मोर पोजेशंस. आज की दुनिया में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पोजेशंस होता है. हर लोग रेस के जैसा सब कुछ भाग रहे हैं अपने पोजीशंस को हथियाने के लिए, अपने पोजीशंस को बनाने के लिए. एंड द बॉय हैड ऑल्सो अ पोजीशन दैट वेंट वेरी फार अवे फ्रॉम द बॉय. सो लिटिल बॉय, ओके, यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंसेस किया था, समझा था, रियलाइजेस किया था. ठीक है, वो भी चला गया. So now we will discuss next point, that is here. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys
a ball back. Money is external. He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. तो सबसे पहले कुछ डिफिकल्टीज वर्ड्स को देख लेते हैं. डाइम, तो इस डाइम का मतलब क्या होता है? 10 सेंट्स. वर्थलेस, तो वर्थलेस का मतलब क्या होता है? यूजलेस. ओके, नाउ वी विल सी ऑल्सो दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस. तो वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म. ओके, एंड एक्सटर्नल जो आपका बाहरी आवरण है, ऑफ द आउटसाइड. डिसपरेट, डिसपरेट का मतलब होता है होपलेस, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाना. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. ओके, सो पीपल विल टेक बॉल्स. यहाँ पे जो बॉल्स है ये कभी जो है बॉल्स को एक मटेरियल से, किसी भी प्रकार के वस्तु से, किसी भी प्रकार के थिंग से कंपेयर किया है. ओके, सो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. तो यहाँ पे कवि जो बताना चाह रहे हैं कि लिटिल बॉय, पीपल विल टेल यू नॉट टू वरी एज वन विल ऑलवेज लॉस बॉल्स वन थिंग और द अदर. पीपल यहाँ पे उसे समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉल्स हैं जो जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं. एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा. बहुत सारे ऐसे बिलोंगिंग थिंग्स हैं हमारे पास जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन से छूट जाते हैं, हमारे लाइफ से निकल जाते हैं और हमें उस पर कॉफिट करना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए. लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. तो यहाँ पे वो जो लड़का कहता है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक. अब कोई भी व्यक्ति उस बॉल को बिल्कुल नहीं खरीद सकता है. एक्चुअली नो वन गेट्स अ लॉस्ट बॉल बैक. जो बॉल खो जाता है, जो बॉल चली गई, उस बॉल को वापस नहीं लाया जा सकता है. मनी डज नॉट अ मैटर. यहाँ पे पैसे की कोई बात ही नहीं है. द बॉय इज लर्निंग, ही इज अ लर्निंग, द बॉय इज लर्निंग. This fact behind his hopeless eyes, he was a very disparate. वह काफ़ी ज़्यादा डिसपरेट था, काफ़ी ज़्यादा होपलेस था, अपने आप को हतोत्साहित था और उन हतोत्साहित के कारण से उन सारी चीज़ों को वो सीखने का प्रयास भी कर रहा था. सो ही इज़ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस. धीरे धीरे वो शुरुआत करने लगा कि प्रकृति में अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, किसी प्रकार का लॉस होता है, तो वह कैसे अपने आप को ओवरकम करेगा, कैसे उसे जानने का प्रयास करेगा. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेचर लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, और उस पर कैसे स्टैंड अप करेगा, उस पर कैसे ग्रोन अप करेगा. ओके, सो समथिंग विच एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड वन डे. और प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन उन सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा. एंड मोस्ट नो एवरी मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और ये सारे लोगों को पता है कि वैसे प्रकार की चीज़ें जो आज हमारे पास है, हो सकता है कल हमारे पास नहीं रहेगा. तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के बारे में समझना पड़ेगा कि एक ना एक दिन वह वस्तु आपसे ओझल हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा. उस समय हमें कैसे कॉफिट करना है, कैसे मैच्योर होकर के, कैसे परिपक्व होकर के हम उन सारी चीज़ों का सामना करेंगे. सो गाइस, हियर with the help of this poem we can get a message. And what does the poet want to give a message regarding this poem, through this poem? So let us see please. The ball poem conveys the ideas that we must not attach ourselves emotionally too much to anything in life. इस बॉल पोम के मदद से कन्वे करना चाहता है, एक आइडिया बताना चाहता है कि हमें कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति इमोशनली उतना ज़्यादा अटैच नहीं होनी चाहिए. ओके, चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार का चीज़ हो, लाइफ में किसी भी प्रकार का चीज़ हो, चाहे वो somebody हो, चाहे वो समथिंग हो. वी शुड नॉट ग्रीव इफ़ यू लूज एनीथिंग एल्स. अगर हम अपने जीवन में कोई चीज़ को खो देते हैं तो हमें कभी भी, ठीक है, उन सारी चीज़ों के प्रति उतना ज़्यादा शोक विलाप नहीं करना चाहिए. हाउ एवर प्रेसियस इट मे बी, चाहे वो कितना भी कीमती हो, द लॉस इज यूनिवर्सल. ठीक है, और लॉस होना एक यूनिवर्सल है. वी कैन बाई सम थिंग्स बट देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन नॉट बी बाउड. दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं
जिन्हें खरीदा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता है। दैट बॉयज बॉल इन दिस poem symbolizes his youthful days and happy innocence। यहाँ पे जो वो लड़का का जो बॉल है इस कविता में, इस पोम में सिंबलाइजेस कर रहा है यूथफुल डेज के बारे में, हैप्पी इनोसेंस के बारे में। कैन ही बाई देम बैक, क्या उन सारी चीज़ों को, यूथफुल डेज को, उनके बचपना के समय को, उनके इनोसेंस हैप्पी लाइफ को क्या खरीदा जा सकता है? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ही मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, उसे अवश्य नेचर ऑफ लॉस के बारे में समझना चाहिए। So students, I have just given the explanations of this poem, so hope so you will understand this video very nicely.